So, dear children, today we will teach a famous writer story. They have to describe about a king. In the ancient time, many rulers came here for their reign. A long time in these areas, they have to capture them. Like that, today, a story based on same situation. Before starting this chapter, I will ask you some introductory question. You will give my answer. The first question is that in the ancient time, who was the lead umpire? Do you know? King. King. Absolutely right answer. King. After the second question is that what is the good quality of the king? A great king, good qualities. You know very well. What is the answer of that question? To understand his public. To understand His public. is his public. अपने public के लिए अंडरस्टैंडिंग करना और वर्क फॉर हिज किंगडम. That's good answer. And third question is that how many types of the sentence? Sorry, I have to mistaken here. How many types of the tense? Do you know? Tense. Three types of the tense. I can write answer. So, do you know what is the three question of the king? No. Okay. Today I will teach you about three questions written by the great famous word writer Leo Tolstoy. Okay. Firstly, I will read this chapter. After that, you will repeat with me. The thought came to, repeat with me. The thought came to The thought came a certain king to a certain king that that he would never fail he would never fail. if he knew If he knew three things. three things, These three things were these three things were what is what is the time the time to begin something. to begin something. Okay. Okay. After that, I will tell you about, explain about is this matter. Listen it very carefully. Pay attention to all students. The thought came to a certain king. एक राजा था, कोई राजा था, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, he would never fail, कि वो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा. If he knew three things, यदि वह जान पाएगा इन तीन चीजों के बारे में. वो तीन चीजें कौन सी थी? वो तीन प्रश्न कौन से थे? These are three questions here. What is the right time to begin something? What is the right time? वह कौन सा ऐसा सही समय है जिसको सही कार्य को करने के लिए हमको चाहिए, जिसकी आवश्यकता हमको है? वह कौन सा समय होता है? सही कार्य को सही समय पर करने के लिए कौन सा समय होना चाहिए? The second question of the king, which people should he listen to? कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बातें राजा को सुननी चाहिए? थर्ड, what is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जिससे
उसे लोगों के लिए करना चाहिए। These are the 3 questions of the king. Go ahead. Which people should he listen to and what is the most important thing for him to do, right? The king therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. The thought came to a certain king. कोई राजा था जिसके माइंड में, मस्तिष्क में एक विचार आया कि he would never fail, वो जीवन में कभी भी क्या नहीं होगा, असफल नहीं होगा। If he knew 3 things, इन 3 चीजों के बारे में यदि वह जान पाएगा। What is the right time to begin something? सही समय पर सही कार्य क्या है? नंबर 1। सेकंड, which people he listen to? उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए? एंड थर्ड, what is the most important thing him to do? कि उसे किन लोगों की सहायता करनी चाहिए? ये 3 चीजें उन्होंने पूछी हैं। उसके बाद आगे राजा क्या करता है, देखिए। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने सेंड मैसेंजर, जो संदेश वाहक थे, उनको भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम। थ्रू आउट मीन्स होता है संपूर्ण, यानी कि अपने साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में अपने संदेश वाहक को भेजा। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और वादा किया, प्रोमिस किया, वादा किया, अ सम ऑफ मनी, एक बहुत ज्यादा धनराशि देने के लिए वादा किया। Who would answer these 3 questions? और कहा यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो देगा उसको बहुत ज्यादा धनराशि दी जाएगी। थर्ड पैराग्राफ, many wise men came to the king. Many wise men came to the king. बहुत सारे विद्वान व्यक्ति थे, वो राजा के पास आए, but they all answered his question differently. लेकिन उन सब ने उनके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी जो हमारा पहला प्रश्न था, उस पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या जवाब दिया? पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। इसका आंसर क्या मिला? पब्लिक के द्वारा उसको सुनते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने क्या कहा? द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को जरूरी है कि उसे एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, समय सारणी निर्धारित करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसको उसके बाद तक इसको बड़ी सख्ताई के साथ क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इस रास्ते पर चलने के लिए। दे सेड could he do everything at its proper time? और वो कहते हैं कि एक सही समय पर, प्रॉपर टाइम पर सब कुछ करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम टेबल बनाना ही चाहिए। अदर सेड, कुछ अन्य लोग थे जिन्होंने क्या कहा कि अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। जो अन्य लोग थे उन्होंने क्या कहा कि यह निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा असंभव कार्य है, ये डिसाइड कर पाना बहुत ज्यादा असंभव कार्य है कि एडवांस में हम डिसाइड करें, उसके बाद हम इसका निर्णय ले पाए। ये हमारे लिए बहुत टफ है कि पहले से टाइम टेबल बना दें, हम ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे साम्राज्य के लिए, तो ये मुश्किल है ऐसा कर पाना, इसे समय के अनुसार उसको कर पाना बहुत असंभव कार्य है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो सब कुछ चल रहा था राजा ने उस सब कुछ को क्या किया? नोटिस किया। उसके बाद अवॉइड फुलिश प्लेजर, कुछ लोग थे जो क्या कह रहे थे, उनको कुछ अवॉइड फुलिश प्लेजर, जो क्या है मूर्खतापूर्ण इनकी जो शान शौकत की चीजें हैं इनको छोड़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं पब्लिक वाले राजा के लिए। ऑलवेज डू व्हाट यू, और हमेशा वही करना चाहिए सीम्ड नेसेसरी, जो सबसे ज्यादा अति आवश्यक है उसको उन्हें करना चाहिए। एट द टाइम नेसेसरी, एट द टाइम, येट अदर्स, लेकिन बाकी जो अन्य लोग थे उन बाकी अन्य लोगों ने क्या कहा? द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, राजा को क्या करना चाहिए? जो बुद्धिमान लोग हैं उन बुद्धिमान लोगों का एक समूह अपने पास रखना चाहिए परामर्श लेने के लिए। Who would help him at the proper time, जो कि सही समय पर उस कार्य के लिए उसको क्या करेंगे? गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे।
दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। यह इसलिए, दिस वॉज बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि वन मैन, एक आदमी के लिए अपने आप में डिसीजन ले पाना अकेले में यह बहुत ज्यादा क्या है, असंभव कार्य है। इसीलिए उसे काउंसिल रखनी चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, बिना दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर डूइंग राइट एक्शन, यानी सही समय पर सही कार्य करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट देन अदर सेड, लेकिन जो अन्य लोग थे उन्होंने क्या कहा था, दैट अदर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं व्हिच कुड बी अर्जेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक, महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो दीज थ्री थिंग्स वुड नॉट वेट फॉर डिसीजन टू द काउंसिल। उस समय ये सारी चीजें जो होंगे उसके लिए हम किसी काउंसिल का इंतजार नहीं कर सकते। सही टाइम पर सही डिसीजन लेने के लिए उसमें हम सारे लोगों को बुलाकर एक साथ, काउंसिल को एक साथ नहीं बुला सकते हैं डिसीजन लेने के लिए, इसलिए यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ काम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम डूइंग समथिंग, यानी कि सही समय पर उनको आदेश देने के लिए, तो उनको बुलाने के लिए। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, अब इसलिए राजा को क्या करना चाहिए, फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए उनको क्या करना चाहिए, अपनी प्लानिंग करनी चाहिए भविष्य को देखते हुए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो भविष्य को देखते हुए राजा कैसे करेगा, आगे पढ़ते हैं। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, फिर कहते हैं कि ऐसा तो सिर्फ कोई नहीं कर सकता, सिर्फ राजा ही, एक जादूगर ही ऐसा, मैजिशियन ही ऐसा कर सकता है सिर्फ, और कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने वुड हैव टू गो मैजिशियन, राजा को क्या करना चाहिए, उस जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या निकल के आता है देखते हैं। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उनको किन लोगों की बातें सुननी चाहिए और किन लोगों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड, कुछ लोगों ने क्या कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, इनके राजा को अपने परामर्शदाताओं की सहायता लेनी चाहिए। फिर कह रहे हैं राजा को अपने परामर्शदाताओं की सहायता लेनी चाहिए। अदर सेड, कुछ अन्य लोग क्या कहते हैं, द प्रीस्ट, राजा को पुजारी रखना चाहिए अपने पास, पुजारी को रखना चाहिए, प्रीस्ट को। एंड ऑफ फ्यू अदर चूज, कुछ अन्य लोग थे वो क्या चूज कर रहे थे, क्या चुन रहे थे वो, डॉक्टर, राजा को डॉक्टर रखना चाहिए। एंड येट अदर, और जो बाकी अन्य लोग थे, सेड दैट द सोल्जर, उनको सैनिक रखने चाहिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, सैनिकों को रखना चाहिए। वर द मोस्ट नेसेसरी, यही सबसे ज्यादा अति आवश्यक है, ऐसा लोगों का मानना था सेकेंड आंसर के पक्ष में। तीसरा प्रश्न जो था, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, वह मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या थी जिसके लिए, जिससे राजा को करना चाहिए, उसके आंसर में क्या निकल के आता है, टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेट सर्विस, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस को रखना चाहिए, विज्ञान को रखना चाहिए, जिससे तरक्की हो और टेक्नोलॉजी हो और उसके माध्यम से ही पूरे साम्राज्य में डेवलपमेंट हो सके। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोग कहते हैं फाइटिंग को तवज्जो देती, क्यों, क्योंकि अगर जो राजा बहुत बड़ा राजा है, उसको छोटे छोटे जो राजा बने हुए हैं उनको जीत कर अपने साम्राज्य में बनाकर बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार करना चाहिए, ऐसा कहना है। एंड येट अदर से, बाकी जो अन्य लोग थे वो कहते थे कि रिलीजियस वॉर से, राजा को एक धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। द आंसर ऑफ द हिज क्वेश्चन वॉट डिफरेंट, जो ये आंसर निकल के आए थे तीनों के, वो बिल्कुल अलग अलग तरह से दिए थे। उससे क्या हुआ, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जिसकी वजह से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया। इंस्टीड, बजाय इसके, he decided to seek the advice of a certain hermit, उसने निर्णय लिया कि वह एक साधु के पास जाएगा, जो कोई साधु है उसके पास जाएगा और क्या करेगा, he decided to seek advice of a certain hermit and who was widely known for his wisdom, उसने अपना एक निर्णय लिया कि मैं एक राजा के पास जाऊंगा जो कि बहुत विद्वान राजा है और जो जिसकी प्रसिद्धि क्या है पूरे क्षेत्र में है, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, मैं उसके पास जाऊंगा, इन तीन प्रश्नों का उत्तर जान के ही रहूंगा, ऐसा राजा ने सोचा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, राजा कहाँ रहता, हर्मिट कहाँ रहता था, साधु कहाँ रहता था, एक जंगल में रहता था, एक जंगल में रहता था।
who would never left, जिसने उस जंगल को कभी भी नहीं छोड़ा था। He saw no one, उसने किसी को भी नहीं देखा था, but simple people, सिर्फ उसने एक साधारण लोगों को ही देखा था, सिर्फ साधारण लोगों को देखा था। And so the king put on ordinary clothes, इसलिए राजा ने क्या किया, साधारण कपड़े पहनकर राजा किसके पास चला गया, उस साधु के पास चला गया। Before he reached the hermit hut, यानी उस साधु के झोपड़ी में पहुंचने से पहले उसने क्या किया, किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, जो उसका अंगरक्षक था उसको अपने घोड़े के साथ उसके साथ वहीं पर छोड़ दिया और अकेला ही चल पड़ा विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन, और अकेला ही चल दिया। ठीक, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। पहला वर्ड था थॉट, इसको नोट डाउन करेंगे आप मीनिंग को। थॉट मीन्स सोचा या यूं कहें विचार, जो राजा के मस्तिष्क में आया था। उसके बाद एक वर्ड था सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, और कई जगह पर कोई के अर्थ में यूज भी किया जाता है। ऐसी एक वर्ड था न्यू, सेकंड फॉर्म ऑफ द नो, न्यू मीन्स जाना, प्रश्नों के उत्तर जाना था राजा ने। फिर नेक्स्ट वर्ड इसमें था थ्रो आउट, मीन्स होता है संपूर्ण। ये डिफिकल्ट वर्ड से इसकी मीनिंग आप नोट डाउन कर लेंगे, कर लिया होगा। चलिए, राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। जब वो हर्मिट के पास जाता है उसके बाद राजा क्या सोचता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही वो कहां आता है, उस साधु के घर के नजदीक आता है। He saw the hermit digging the ground, उसने देखा कि जो हर्मिट था वो जमीन को क्या कर रहा है, खोद रहा है, ग्राउंड को खोद रहा है, जमीन को। किसके आगे, इन फ्रंट ऑफ हट, अपने झोपड़ी के ठीक सामने। He greeted the king, उसने क्या किया, उस राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और लगातार क्या करता रहा, जमीन को खोदते रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वॉक ही ब्रीथ्ड हैवीली, जैसे वो कार्य करते जा रहा था तो गहरी सांसें साथ साथ लेते हुए जा रहा था, क्योंकि वह बूढ़ा और कमजोर था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा था वो किसके पास गया, हर्मिट के पास जाता है और उसने कहा, आई हैव केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं। वाई सेपरेट, ज्ञानी पुरुष, मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब मैं इसमें बोधात्मक प्रश्न कर रहा हूं। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न में सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द 3 क्वेश्चन, वो 3 प्रश्नों के उत्तर राजा क्यों जानना चाहता था, क्यों जानना चाहता था, बिकॉज ही वांट टू नेवर फेल ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि अपने जीवन में वो कभी फेल नहीं होना चाहता था। यही 3 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। उसके बाद लगातार 3 प्रश्नों के उत्तर आप घर से होमवर्क में करके लेके आएंगे। पहला प्रश्न का आंसर क्या था, किन लोगों ने क्या बात कही थी, टाइम टेबल बनाना चाहिए निश्चित रूप से। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने क्या कहा था, किसको देना चाहिए, तो जो साइंस वगैरह को देना चाहिए। और थर्ड प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या कहा था, हमको अपने एक निश्चित जो सोल्जर्स हैं उनको रखने चाहिए, इस तरह से बताया था। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल।